Hello students, in the last class we discussed about your type of plan. In today's class we will discuss about elements of planning. That would be the last topic of your chapter. When I am explaining all the topics, I give you homework. तो जो questions repeat हो रहे हैं वो आपको नहीं करने हैं. Other than that, complete all the questions and complete your exercise and send it to me. I will check and I will resend you the solution. Okay, let us start with our topic then. So now we are going to start with your today's topic, that is elements or components of planning. Elements और components of planning, उसका अगर मैं शॉर्टकट बताऊं तो मैं इसके एलिमेंट्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, मेथड, प्रोसीजर्स और रूल्स एंड बजट एंड प्रोग्राम. सो द फर्स्ट वर्ड्स वुड बी O P M R B P. ठीक है, O P M R B. So I shuffled this you can say words, and I shuffled it like you can say opposite. O double P, I use this opposite. O double P. Mr. M R is Mr. B. Opposite Mr. B. ठीक है. When you are opposing Mr. B, you will get the elements of planning. इस तरह से आप शॉर्टकट में अपना खुद का भी शॉर्टकट बना सकते हो to learn the points. Okay, now let us understand each and every point. First point is your, you can say, objective. Now what do you understand by the word objective here? Objective का मतलब होता है goal. You all know. ठीक है. So every businessman, it starts with the aim of completing its you can say objective or goal. ठीक है. It is the desire at which you want to reach in future. ठीक है. Desire or your future position. Objective क्या होता है? आपका future position है. ठीक है. Where you want to reach. So what type of objective you should have while you are making a plan? You can say objective should be I would say pragmatic in nature. Pragmatic मतलब practically possible होना चाहिए. It should be pragmatic. It should be realistic. It should be considering the ideals. ठीक है. It should not oppose the ideals of the company, and it should be attainable. Your you can say objective should be attainable. ठीक है. You should not be over ambitious. हमारे जो होते हैं ना, over ambitious नहीं होना चाहिए. मतलब for example, if a person is getting just before few days there was one child who got promoted due to corona. Now what do you understand by the word promoted due to corona? It is, just a second students, promoted due to corona. Promoted due to corona का मतलब होता है you are supposed to, you can say, get promoted in a subject. That means your objective should be getting you can say good marks in examination. That is true, but that you cannot do कि भाई promoted due to corona है और अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे तो बोर्ड में 98 से कम आएंगे ही नहीं. Now promoted due to corona का मतलब क्या है कि ड्यू टू कोरोना हमने आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया, और जो रैंकर बच्चा है मेरी क्लास का, ही इज़ गेटिंग 88% एंड यू आर सेइंग आई विल गेट 98%. आपका ऑब्जेक्टिव सही है, बहुत सही है, आई वोंट से, बट आई वुड से इट इज़ लिटिल बिट अनरियलिस्टिक. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट वेयर यू गेट 85 to 95 हाईएस्ट. ठीक है. नाउ यू सेट आई विल गेट 100 out of 100. ठीक है. 100% मार्क्स आई विल गेट इन इंग्लिश. दैट इज अनरियलिस्टिक इन नेचर बिकॉज इंग्लिश इज़ अ थियोरी सब्जेक्ट एंड यू कैनॉट गेट 100 out of 100. हाँ, आप ऐसा बोलो कि मैं अकाउंट्स में 100 out of 100 लाऊंगा, स्टैट्स में 100 out of 100 लाऊंगा, BO में आप 100 out of 100 लेके आओगे. दैट इज़ अंडरस्टूड, बट नॉट इन हिंदी और इंग्लिश और गुजराती. इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट 100 out of 100 इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और हिंदी. उसमें आपके बोर्ड में 100 out of 100 कभी नहीं आएंगे. Got my point? So the objectives which you keep, it should be realistic in the nature, which is possible to be attained. ठीक है. Next is second would be strategy. तो strategy का मतलब क्या होता है? Strategy is the you can say thought or you can say path
विच यू चूज़ टू अचीव योर गोल। हमारे या फिर ऑब्जेक्टिव को जो अचीव करने के लिए जो हम पाथ चूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी और इज़ यू कैन से मेड टू फाइट अगेंस्ट कॉम्पिटिशन। हम लोग जब भी कोई हमारा अचीव करेंगे गोल, तो हमारे सामने कंपटीशन होगी, तो उस कंपटीशन को कैसे हम लोग हाउ यू वुड फाइट अगेंस्ट द कंपटीशन। लाइक फॉर एग्जांपल फुटबॉल की गेम में वो लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, या फिर क्रिकेट की गेम में दी हैव मेक स्ट्रैटेजी कि भाई ये कॉम्पिटिटर का जो स्टार प्लेयर है उसके आसपास में 3 प्लेयर होने चाहिए। वाई? बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज बिकॉज ऑफ दैट स्टार प्लेयर। हर ग्रुप में एक स्टार प्लेयर होता है, फुटबॉल में तो होता ही है, जैसे रोनाल्डो है। ठीक है, तो रोनाल्डो के आसपास में 4 प्लेयर घूमेंगे, उसको कवर करके रखेंगे जिससे वो गोल ना कर सके। तो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ द यू कैन से कॉम्पिटिटर्स। और रोनाल्डो की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि हाउ टू कोप अप विद दिस 4 यू कैन से जो भी उसको कवर कर रहे हैं उससे कैसे निकल के गोल करे। गोल इज हिज ऑब्जेक्टिव, तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करे फ्रॉम आफ्टर फेसिंग 4 कॉम्पिटिटर्स अराउंड हिम, दैट इज हिज स्ट्रैटेजी। इट इज़ फाउंड इन योर आर्मी मेक्स स्ट्रैटेजी, है ना। आप देख सकते हो स्ट्रैटेजी बनाते हैं टू विन द वॉर, दे मेक स्ट्रैटेजी, है ना। स्पोर्ट्स पर्सन दे मेक द स्ट्रैटेजी। ठीक है, दिस स्ट्रैटेजी इज the path to reach your objectives, and it is we try to keep our strategy confidential, क्योंकि अगर सामने वाले को हमारी strategy पता चल जाएगी तो he will make a counter strategy and we would lose. So we try to keep your strategy you can say very confidential as such. ठीक है, if your strategy is correct then you'll definitely achieve your objective. ठीक है, थर्ड वुड बी योर पॉलिसी। यू कैन से जो डिसीजंस और जो स्ट्रैटेजीज है उसका बेस होता है पॉलिसी। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज़ माय पॉलिसी। सो इफ़ आई एम मेकिंग एनी स्पोर्ट्स पॉलिसी स्ट्रैटेजी, मैं जो भी कुछ स्ट्रैटेजी बनाती हूँ ऑफ स्पोर्ट्स, आई विल मेक इट विद ऑनेस्टी। मैं डिसऑनेस्टी के साथ में अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाऊँगी, even if I won't be able to achieve the objective. तो the base of strategy is our policy. Honesty अगर आपकी policy है तो आपकी strategy honesty से बनेगी, और उसी honesty की policy से you will achieve your objective. Got my point? देखिए, third would be your policy. Fourth is your methods or procedures. To achieve your you can say objectives, we are using different methods. There are plan A, B, C. सपोज कोई भी यू कैन से कोई भी जगह पे पहुंचने के लिए, जैसे स्कूल आने के लिए फ्रॉम योर होम टू स्कूल, देयर आर 3 वेज A, B, C. अब ए वाले रास्ते पे हमेशा एक डॉगी रहता है जो आपके ऊपर भौंकता रहता है। बी वाले रास्ते पे आपका एक फ्रेंड रहता है, और सी वाले रास्ते बहुत लंबा है। ठीक है, तो विच वे यू वुड रीच, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रीच स्कूल। तो मेथड कौन सी लेंगे? द सेकेंड मेथड और सेकेंड रूट वी विल टेक सो एज टू रीच योर यू कैन से ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मेथड और प्रोसीजर्स आर यू कैन से पॉलिसीज़ को जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यू कैन से बिजनेस प्रोग्राम्स। हमारे जो भी बिजनेस प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग अप्लाई करते हैं ओवर हियर। फॉर एग्जांपल मेथड्स, लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स है हमारे, तो हाउ यू विल फाइंड आउट योर क्वार्टरली सेल्स, कौन सी मेथड यूज़ करोगे, दैट इज़ डिसाइडेड ओवर हियर। ठीक है, और फिर उसके बेस पे जो आपका सेल्स का जो क्वार्टरली होगा उससे हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव अचीव किया है या नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रूल्स। नाउ रूल्स आर समथिंग जो आपको पता ही है, आप लोगों ने हमारे मुंह से बहुत बार सुना है कि दिस आर स्कूल रूल्स। यू आर सपोज टू कम टू स्कूल बाय 7:10, दैट इज़ द रूल ऑफ आवर स्कूल। यू कैन नॉट यू कैन से गो ओवर एंड अबाउट द रूल्स। कोई भी आपकी मेथड, कोई भी आपकी पॉलिसी, it should not be over and above the rules. No smoking in the workplace. Even if it is good for you, you feel कि मुझे smoking से अच्छा लगता है, but it is not allowed, means it is not allowed. Late coming होगा तो half CL कटेगा, for example, that again comes under your you can say rules as such. Okay, got my point? So rules are something which is made for the better understanding of the individual. जो हमारी strategy है
जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी मेथड है, उसके बेस पे हम लोग हमारी रूल्स बनाते हैं, है ना। और उसी रूल्स के बेस पे द वर्क विल बिकम ईजी एंड दिस रूल शुड बी यूनिफॉर्म इन नेचर। मतलब यू कैनॉट, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट रूल्स नहीं बनते हैं, सेम रूल्स शुड बी मेड फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, यू शुड नॉट मेक डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बजट। नाउ वॉट एवर वर्क यू डू, यू आर सपोज टू, यू कैन से द होल थिंग इज दैट कि भाई हर चीज़ में हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सो बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान फॉर, यू कैन से, डूइंग एनी एक्टिविटी। आप अपनी मेथड कौन सी अप्लाई कर रहे हो, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी जो भी है, उसका खर्चा क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर वो हमारे बजट में है देन वी विल अप्लाई, अगर वो नहीं है तो इट वोंट बी अप्लाई। सो बजट कीप्स कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्सपेंसेस एंड कीप्स द चेक ओवर द, यू कैन से, एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। हम लोग क्या है, अनड्यू एक्सपेंसेस वी वोंट डू एंड इट विल हेल्प यू टू, यू कैन से, कैरी आउट द वर्क as per the, you can say, money allotted to you. You have to stick to the budget throughout the year. Okay, आप सेल्स कर रहे हो या आप परचेज कर रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप मार्केटिंग में आप 2 लाख की भी मार्केटिंग कर सकते हो, 2 करोड़ की भी मार्केटिंग कर सकते हो। नाउ इट इज़ अप टू द बजट ऑफ अ कंपनी दैट अगर हमारा बजट ज़्यादा है देन वी विल मेक मोर, यू कैन से, एक्सपेंसेस। अगर हमारा बजट कम है तो वी विल मेक लेस एक्सपेंसेस। अलग अलग टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू कैन से, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है, फिर सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, कैश बजट है, हर चीज़ का बजट है। यू हैव टू फॉलो द बजट। नेक्स्ट इज़ योर प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। मतलब व्हाट आई विल डू आफ्टर फर्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, सेकेंड एक्टिविटी कौन सी थी, थर्ड एक्टिविटी कौन सी है, एक सीक्वेंस हम लोग डिटरमाइन कर देते हैं और उस सीक्वेंस के हिसाब से ही वी विल डू द एक्टिविटी। ठीक है, वी सी दैट दिस प्रोग्राम हेल्प अस टू सी दैट द वर्क इज डन एज पर आवर ऑब्जेक्टिव. So all these elements help us to achieve what our main objective of your planning. Planning का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के लिए ये स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, मेथड, रूल्स, बजट दे हेल्प अस आउट. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर यू कैन से एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग. दे इफ सपोज देर इज एनी डेविएशन फाउंड इन ड्यूरिंग, अगर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और हमें लगता है कि देर इज़ अ नीड ऑफ द करेक्टिव स्टेप्स, कहीं पर भी लगता है तो यू शुड रेडीली एक्सेप्ट द चेंजेस एंड टेक द करेक्टिव स्टेप्स. एप्लीकेशन के टाइम पे अगर लगता है तो यू हैव टू टेक करेक्टिव स्टेप्स. फॉर एग्जांपल सेल्स प्रमोशन, अगर आपने गुड्स को सेल्स प्रमोट किया है एंड यू मेड अ प्रोग्राम एंड यू एक्सपेक्टेड दैट ड्यू टू दैट 40% सेल्स विल इंक्रीज, बट आपका सेल्स सिर्फ 4% ही इंक्रीज हुआ है, मीन्स यू आर लैकिंग बिहाइंड समवेयर. यू नीड टू चेंज योर प्रोग्राम. हमें हमारे प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत है. तो यू हैव टू continuously check your program, the sequence of the work we are doing, and wherever you find that the changes are needed, there you have to make a changes. Okay, this is all about your elements or components of planning. Okay, and it you can say this is very important for your board exam. board exam में ये question बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, very important for your board exam. So please learn this question nicely. Okay, so this is all about your functions of or elements of planning. I hope all of you understood this. If you have difficulty you may ask me. All of you learn the important concepts. Maximum questions हमने complete कर लिए हैं. जो questions बाकी है you complete your exercise of chapter 3. Complete exercise of chapter 3. जो क्वेश्चंस हमने साथ साथ में किए हैं वो क्वेश्चंस आप एक्सक्लूड कर लो. जो क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए हैं इन बिटवीन, यू हैव टू डू इट. स्पेशली द एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स और ये सब जो है ये मैंने होमवर्क में नहीं दिए हैं. तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट दिस as well as MCQ. Okay, so complete this and send it to me. I will check it out. Okay, so I want all of you to stay home and stay safe. I hope all of you are preparing for your examination well. Goodbye for now, students.